friends, how are you? Welcome to my YouTube channel. I am Pritham and today we are going to start with the first chapter of 10th standard history, that is historiography, development in the West. Before beginning, I would like to confirm with you, if you like my lectures, if you want to study with the help of my videos, please subscribe my channel so that I will prepare more videos for you and bringing more challenges for you. So without wasting time, let's begin with the first chapter of history, that is historiography, development in the West. See, in the beginning of the lesson, a little longer introduction is provided. So in this introduction, only 2 points are there. First thing is, there is a comparison between history and physical and natural sciences. So in the first passage, what is said? Historical research, writing and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections. This is a continuous process. So what they have stated here, what is the objective of understanding the chronology of the past events and their interconnections? For that purpose, we do the historical research, writing and studies. And how is this process? It is a continuous process. In the physical and natural sciences, the empirical method, that is laboratory method of experiments and observation, is used to verify the available knowledge. This method allows formulating laws that remain true irrespective of the time and space. Those laws can be tested and proved repeatedly. See, in this passage, what is said? In physical and natural sciences like chemistry, biology, physics, we use one method. What is the name of that method? Empirical method. And the another name is laboratory method. In that we do the experiments, we have the observations, and we can verify the available knowledge. And you know, this method is very helpful for formulating the laws that can be true irrespective of the time and space. भले आपने समय चेंज कर दिया, जगह चेंज कर दी, लेकिन वो लॉ कभी भी चेंज होता नहीं है. And this law can be tested and proved repeatedly again and again. लेकिन ऐसा हम हिस्ट्री में कर सकते क्या? कोई लॉ हमने बनाया है और टाइम चेंज हो गया और प्लेस चेंज हो गया, तो भी वो सच रहेगा, ट्रू रहेगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन हिस्ट्री. इसलिए हिस्ट्री में हम फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च ये एम्पेरिकल मेथड जो है, लेबोरेटरी मेथड है, वो हम यूज़ नहीं कर सकते. वही आगे के पैसेज में दिया है. इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. This is so because we were not present in the historical time and space, and the historical events cannot be recreated. Also in history, it is not possible to formulate laws that remain true irrespective of the time and space. तो ये आप यही बताया कि वो मेथड हम यूज नहीं कर सकते. क्यों? Because we were not present in the historical time and space, and those historical events cannot be recreated. और ऐसे लॉज भी नहीं बना सकते that will remain true irrespective of the time and space. हिस्ट्री में क्या है, हमने टाइम चेंज कर दिया और स्पेस चेंज कर दी, तो वो लॉ भी क्या हो जाता है, ट्रू नहीं रहता है, वो भी चेंज हो सकता है, राइट. सो टू बिगिन, यहाँ से अपना लेसन एक्चुअली शुरू होता है. टू बिगिन, वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. तो हिस्ट्री में हमें किसकी जरूरत है? एक्सपर्ट की जरूरत है. ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसको क्या पता है, ही नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट. किसके लिए? इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग. Also, the experts can examine the authenticity of the document by using criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date and type of paper, stamps of authority. और जो डॉक्यूमेंट मिला है हमें, उसको ये एक्सपर्ट फर्दर एक्सप्लेन कर सकते, एग्जामाइन कर सकते विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट क्राइटेरिया. कौन से क्राइटेरिया है? जैसे कि लेटरिंग स्टाइल है, वो लेटर के स्टाइल्स कैसे हैं. ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, हर एक ऑथर का राइटिंग स्टाइल अलग होता है, तो इनका कौन सा स्टाइल है. मैन्युफैक्चरिंग डेट, टाइप ऑफ पेपर, कौन सा पेपर यूज हुआ है, एंड स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी, यहाँ पे कौन सा स्टैम्प उन्होंने यूज किया, राइट. सच अ डॉक्यूमेंट इज फर्दर स्क्रूटिनाइज बाय अ हिस्टोरियन with the help of relevant historical references. और ये डॉक्यूमेंट और आगे जाके स्क्रूटिनाइज किया जा सकता है with the help of relevant historical references. तो देखो नीचे एक डायग्राम भी दिया गया है कि राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव कैसे करते हैं हम. तो यहाँ पे 6 सेक्शंस है इन, और यू कैन से दीज आर द 6 स्टेप्स with the help of which we can do the writing of historical narrative. तो हम राइटिंग कैसे कर सकते हैं हिस्टोरिकल नैरेटिव? सबसे पहले क्या करना है हमें? Examining relevant references of the available historical information. तो हमारे पास जो ऐतिहासिक इंफॉर्मेशन उपलब्ध है उसको क्या करना है? एग्जामाइन करना है, ठीक है. सेकेंड क्या है? कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन
highlighting the processes that lead to historical transitions, carrying out comparative analysis। तो क्या कलेक्ट करना है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। क्या हाईलाइट करना है? ऐसे प्रोसेसेस हाईलाइट करनी है जो हमें कहाँ लेके जाते हैं? टू द हिस्टोरिकल ट्रांजिशन। वो बताते हैं हमें कि यहाँ पे ऐतिहासिक चेंज हुआ है और इनके बीच में क्या करना है हमें? कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, कंपैरिजन करना है। थर्ड, understanding the references regarding time and space of the given historical events and also various conceptual frameworks used in historical research method। किसको समझ लेना है हमें? अलग अलग जो रेफरेंसेस है किसके रिलेटेड? टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स। जिस इवेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके बारे में हमारे पास कोई रेफरेंसेस है क्या? उस समय के रेफरेंस, उस जगह के रेफरेंस, उसको समझना है। एंड ऑल्सो वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो उस ऑथर ने कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज किया है क्या? कोई सेट ऑफ आइडियाज, कुछ सेट ऑफ रूल्स यूज किया है क्या उस हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए? उसको भी हमें समझना है। फोर्थ, फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो जो जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस हमें मिले हैं उसके रिलेवेंट हमें क्या बनाने हैं? क्वेश्चंस बनाने हैं। फिफ्थ, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो हमें एक स्टेटमेंट बनाना है हमारे स्टडी का, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, राइट। एंड लास्ट है क्रिटिकली एग्जामाइनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और जो जो सोर्सेस हमारे पास है उनको कैसे एग्जामाइन करना है? क्रिटिकली, बहुत ही डीपली एग्जामाइन करना है। और इंट्रोडक्शन में एक लास्ट पैसेज है, मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो अलग अलग जो शाखाएं हैं, डिसिप्लिन मतलब शाखा है, ज्ञान की शाखा है, उनको यूज किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च में। जैसे कि आर्कियोलॉजी है, सेकेंड है आर्काइवल साइंस, थर्ड मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको पता है, राइट? उसके रिलेटेड जो साइंस होता है उसको मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। एपिग्राफी मीन स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले पत्थर पे, राइट, स्टोन्स पे, कॉपर प्लेट्स पे, उस साइंस को क्या बोलते हैं? स्टडी को एपिग्राफी। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, तो लेटर्स के स्टाइल कैसे उसको एनालाइज करना है। लिंग्विस्टिक्स, कौन सी भाषा यूज की। न्यूमिज्मेटिक्स, स्टडी ऑफ कॉइन्स, कौन से कॉइन्स हमें मिले हैं। एंड जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनियज, जो वंश है, जो फैमिली है स्टेप बाय स्टेप, उसका स्टडी, उस साइंस को क्या बोलते हैं? जीनियोलॉजी। तो इस लेसन का जो पहला पॉइंट है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, राइट। वी हैव लर्नड अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामाइनिंग द हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। तो इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होना चाहिए, क्रिटिकली एग्जामिन करना क्या होता है, और हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं, राइट। एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव क्या होता है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी। तो देखो यहाँ पे हिस्टोरियोग्राफी का डेफिनेशन दिया है। व्हाट इज मीन बाय हिस्टोरियोग्राफी? राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव। और जो व्यक्ति इसका स्टडी करता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन बोलते हैं। A scholar who writes such a narrative is a historian. The historian cannot include every past event in his narrative. The inclusion and interpretation of historical events by the historian often depends on the conceptual framework adopted by him. His style of writing is determined by that conceptual framework. तो ये पैसेज में बहुत क्लियरली दिया है कि हिस्टोरियन हर एक पास्ट इवेंट को उसके नैरेटिव में ऐड नहीं कर सकता है। तो वो कैसे ऐड करता है, क्यों ऐड नहीं करता है, ये कैसे डिसाइड होता है? इट डिपेंड्स ऑन हिज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय हिम। तो उसने कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है हिस्ट्री को राइटिंग करने के लिए? क्या वो फेमिनिस्टिक एटीट्यूड यूज कर रहा है, क्या वो मार्क्सिस्ट एटीट्यूड यूज कर रहा है, या फिर दूसरा कोई आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क है? दैट डिसाइड्स विच इवेंट्स टू बी इंक्लूडेड एंड विच टू बी रिमूव्ड। और उसका जो स्टाइल है राइटिंग का वो भी किससे डिटरमाइन होता है? उसने जो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क सिलेक्ट किया है उसकी वजह से डिटरमाइन होता है। द ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग हिस्टोरिकल नैरेटिव, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world। तो जो हिस्टोरियोग्राफी हम बोलते हैं, अभी हमने डेफिनेशन देखा। व्हाट इज बाय हिस्टोरियोग्राफी? द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल नैरेटिव। क्या ये पास्ट समय एंशिएंट पीरियड में अवेलेबल था? तो नॉट अवेलेबल। लेकिन इसका मतलब ये होता है क्या कि लोगों ने कभी हिस्टोरिकल टाइम के बारे में सोचा ही नहीं? तो ऐसा नहीं है। दैट दे वर अवेयर अबाउट द हिस्टोरिकल टाइम एंड दे वर ईगर टू नो अबाउट इट। तो उन लोगों को हिस्ट्री का टाइम पता था और बहुत उत्सुक थे जानने के लिए। Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation। तो हमारे जो वंशज है उनको पता था, उनको ऐसी जरूरत लगी कि हमारे जो स्टोरीज है, हमारे कहानियां है हमारे जीवन के बारे में, वैलर ऑफ द एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों की जो कथाएं है, जो साहस कथा है, उसको हमें किसको पास ऑन करना चाहिए? नेक्स्ट जनरेशन, अगली पीढ़ी को देना चाहिए। एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड used various means like cave paintings, storytelling, singing songs and ballads for this purpose। तो उन्होंने अपनी जो जीवन की कथा है, अपने वंशजों के बारे में जो साहस कथा है, वो किसके द्वारा पास ऑन की? फॉर एग्जाम्पल द केव पेंटिंग्स, तो गुफाओं में जो पेंटिंग्स है, स्टोरी टेलिंग,
सिंगिंग सॉन्ग्स एंड बैलड्स, इसके द्वारा उन्होंने वो पास ऑन किया है। These traditional means are looked upon as the sources of history in the modern historiography। और अभी जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी उसमें जो हम हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके लिए ये जो मेथड से पुराने लोगों के जो स्टोरी टेलिंग है, केव पेंटिंग्स है, सिंगिंग सॉन्ग्स है, बैलड्स है, वो आज बहुत ही यूजफुल है। दे आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, राइट। उनको हम ट्रेडिशनल मीन्स बोलते हैं। तो देखो ये ट्रेडिशनल मीन्स के बारे में यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है राइट हैंड में। वो क्या है? द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लॉरे म्यूजियम। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी में। हमने ऐसा कोई सोर्स है हमारे पास जिसके हेल्प से हम हिस्ट्री का रिसर्च कर सकते हैं? तो यस, देयर इज वन एग्जाम्पल, इंस्क्रिप्शन इन द लॉरे म्यूजियम। ये लॉरे जो शहर है वो फ्रांस में है। द अबव पिक्चर शोज अ फ्रैगमेंट ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन। बहुत ही पुराना इंस्क्रिप्शन है। फ्रैगमेंट मतलब टुकड़ा है। अ फॉरवर्ड मार्चिंग फाइल ऑफ सोल्जर्स होल्डिंग शील्ड्स एंड स्पीयर्स इज सीन हियर। तो इस पिक्चर में हमें क्या दिखता है कि एक टुकड़ी है सोल्जर्स की, उनके हाथों में क्या है? शील्ड्स है, ढाल है, स्पीयर्स है, भाला है, राइट। द जनरल इज इन द फ्रंट, और उनका जो सरदार है वो सबसे आगे है। द ट्रेडिशन ऑफ रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। तो ऐसे इंस्क्रिप्शन, जो पत्थरों पे इंस्क्रिप्शन है, ये जो ट्रेडिशन है, ये जो परंपरा कब शुरू हुई है? तो कौन से संस्कृति में शुरू है? सुमेर सिविलाइजेशन इन विच कंट्री? मेसोपोटामिया। Names of Sumerian kings and the stories of battles fought by them have been preserved in various inscription। तो इंस्क्रिप्शन में कौन से टॉपिक्स थे उनके? नेम्स ऑफ सुमेरियन किंग्स, स्टोरीज ऑफ बैटल्स फॉट बाय, उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं उसके बारे में लिखा गया, इंस्क्रिप्शन किया गया। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन शोन अबाव डेट्स बैक टू 4500 BC। कितना पुराना है ये? 4500 बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्रिश्चियन एरा। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन टू किंगडम्स। और ये जो लॉरे म्यूजियम में हमें जो मिला इंस्क्रिप्शन, इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है? बैटल बिटवीन टू किंगडम्स। इट इज नाउ डिस्प्लेड एट द लॉरे म्यूजियम इन फ्रांस। चलो, तो इस लेसन का जो सेकंड पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। क्या होता है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी? इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो 4 कैरेक्टरिस्टिक। पहला क्या है? इट्स मेथड इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। इट बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के लिए जो मेथड हम यूज करने वाले हो किसके ऊपर आधारित है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक तत्व, ठीक है। और ये जो मेथड शुरू होती है, किससे शुरू होती है? फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, दिस क्वेश्चंस आर एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? It means that these questions are about the deeds of the members of ancient human societies of a particular period। क्वेश्चंस एंथ्रोपोसेंट्रिक के मतलब क्या है? तो ये जो क्वेश्चंस है किसके रिलेटेड है? डीड्स। डीड्स मतलब एक्शंस, कार्य, राइट। किसका कार्य? डीड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, राइट। हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशन बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स। तो एक याद रखना, हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो भगवान और लोगों के जो कार्य है इसके बारे में कोई भी रिलेशन नहीं बताता है। हिस्ट्री वो फिलोसॉफी नहीं है, राइट। तो फिलोसॉफी में बताते हैं गॉड के बारे में, लेकिन हिस्ट्री गॉड में विश्वास नहीं करता है। हिस्ट्री डज नॉट टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन डिवाइन एंड द ह्यूमन डीड्स, ठीक है। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। हमने तो क्वेश्चन बना लिए, रिलेवेंट क्वेश्चन बना लिए। ये क्वेश्चन एंथ्रोपोसेंट्रिक है। अभी जो आंसर्स हम देने वाले, बनाने वाले हैं, तैयार करने वाले, दिस आंसर्स आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस। हमारे पास कोई प्रूफ होना चाहिए। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है, हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। तो इतना सारा स्टडी करने के बाद, क्वेश्चन बनाने के बाद हमारे पास आंसर भी आ गए, तो इस आंसर के हेल्प से हम क्या बना सकते? ग्राफ बना सकते। एक हिस्टोरिकल ग्राफ है। एंड व्हाट डज दिस ग्राफ इंडिकेट्स? दिस ग्राफ इंडिकेट्स द मैनकाइंड जर्नी। तो हमारे जो मानव जात है उसका प्रवास यहाँ पे दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन डीड्स। It is said that the modern historiography with above characteristics has its roots in the ancient Greek historical writings। तो हमने ये जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक ढूंढे हैं मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के, इसके जो रूट्स है हमें कहाँ पे मिले हैं? एंशियंट ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स। हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म। Herodotus, the Greek historian of the 5th century BC, used it first for his book entitled The Histories। तो देखो ये जो टर्म हिस्ट्री कौन से लैंग्वेज से आया? ग्रीक लैंग्वेज से आया। और पहले किसने यूज किया है? हेरोडोटस। कौन था हेरोडोटस? द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ विच सेंचुरी? 5th century BC। और उसने जो वर्ड यूज किया है कौन से उसके बुक के लिए यूज किया? क्या टाइटल उसके बुक का? द हिस्ट्रीज, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इस लेसन का है, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी।
तो जो ये साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है, व्यू है, एटीट्यूड है, इसका डेवलपमेंट सबसे पहले कहां पे हुआ है? यूरोप में हुआ है। और हिस्टोरियोग्राफी का डेवलपमेंट भी कहां पे हुआ है? यूरोप में हुआ है। क्यों हुआ है हिस्टोरियोग्राफी का डेवलपमेंट यूरोप में? क्योंकि वहां पे सबसे पहले साइंस का डेवलपमेंट हुआ है। और हिस्टोरियोग्राफी भी क्या है? एक साइंटिफिक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, राइट। टिल द 18th century सी यूरोप हैड अचीव्ड अ रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड्स ऑफ फिलोसॉफी एंड साइंस। तो 18वीं सदी तक यूरोप में दो फील्ड में बहुत ही विकास हुआ था, रिमार्केबल प्रोग्रेस हुआ था। कौन से फील्ड से हो? फिलोसॉफी एंड साइंस। Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific methods. तो जो स्कॉलर्स से, जो तज्ञ लोग थे, उनको भी विश्वास हो गया था कि अभी हम हिस्ट्री का पढ़ाई कर सकते, जो हिस्टोरिकल ट्रूथ से उसको हम ला सकते। हाउ? बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड्स। Now the philosophical discussions focused more and more on the objectivity in history and historiography. अभी लोगों के पास साइंस था, बहुत सारा नॉलेज था, तो उन्होंने क्या किया? जो फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है उसमें क्या किया उन्होंने? जो ऑब्जेक्टिविटी इन हिस्ट्री है एंड हिस्टोरियोग्राफी, उसको ज्यादा से ज्यादा सामने लाया, राइट। Prior to the 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourses revolving around divine phenomena. तो 18वीं सदी के पहले जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय है, वो सिर्फ दो चीजें में, एक चीज में इंटरेस्टेड। कौन सी थी वो? फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेज रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन फिनोमिना, सिर्फ भगवान के बारे में। क्या भगवान, हमने पाप किए तो भगवान हमें ये शिक्षा देगा, हमने ऐसा प्रेयर नहीं किया तो ऐसा होगा। सो ओनली वट एवर इंसिडेंट हैपन, नो दे यूज्ड टू रिलेट विद द गॉड। सो दिस इज कॉल्ड एज फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेज रिवॉल्विंग अराउंड डिवाइन फिनोमिना। देखो, डिवाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड और फिनोमिना का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगैन टू चेंज। तो धीरे धीरे ये सिचुएशन चेंज हुआ। इन 1737 सी द गॉटिंजन यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन जर्मनी। तो जर्मनी में एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। क्या नाम था उसका? गॉटिंजन यूनिवर्सिटी। दिस यूनिवर्सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री का डिपार्टमेंट है, कौन से यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ? गॉटिंजन यूनिवर्सिटी। लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज आल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज। जैसे यहाँ पे शुरू हुआ गॉटिंजन में, तो धीरे धीरे जो बाकी के विश्वविद्यालय है जर्मनी में, वहां पे भी हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट शुरू हुआ। अभी नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नोटेबल स्कॉलर्स। तो हिस्टोरियोग्राफी में, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में कौन से स्कॉलर्स हैं जिनका बहुत ही बड़ा योगदान है? The contributions of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contributions of the few notable scholars. तो सबसे पहला स्कॉलर कौन है यहाँ पे? उनका नाम है रेने डिस्कार्टिस। तो इनका जन्म हुआ है 1596, born in 1596 and passed away in 1650. Rene Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents by critically examining them. ये जो रेने डिस्कार्टिस है, ये सबसे पहले स्कॉलर है जिन्होंने एक चीज पे बहुत ही एम्फोसाइज किया, और वो कौन सी चीज थी? कि हमें जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है उसको वेरीफाई करना चाहिए। हाउ? बाय क्रिटिकली एग्जामाइनिंग देम। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहली चीज बताई। Among the rules given by him in his book Discourse on the Method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. तो उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें कुछ रूल्स, कुछ नियम बताए हिस्टोरिकल रिसर्च के। उनकी किताब का नाम क्या है? डिस्कोर्स ऑन द मेथड। और इस किताब में एक रूल है, उस रूल का इतना प्रभाव हुआ है हिस्टोरिकल रिसर्च पे कि पूरा हिस्टोरियोग्राफी चेंज हुआ आगे जाके। तो वो रूल कौन सा है? यहाँ पे दिया है, नेवर टू एक्सेप्ट एनीथिंग फॉर ट्रू टिल ऑल ग्राउंड्स ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड। हमें किसी भी चीज को तब तक सत्य नहीं मानना चाहिए जब तक सब शंकाओं का निरसन नहीं होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, सही है। जब तक हमारे माइंड में कोई डाउट नहीं रहता है ना, तो उस चीज को हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, उसको ट्रूथ नहीं मानना चाहिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर 2 मार्क के हमें आंसर लिखना है, 4 पॉइंट लिखने, तो कैसे लिखोगे आप? सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि ये रेने डिस्कार्टिस वाज अ नोटेबल स्कॉलर, राइट, इन द बिगिनिंग, एंड ही एम्फसाइज, सेकंड पॉइंट, ही एम्फसाइज ऑन द मेथड ऑफ verifying the historical document by critically examining them. और थर्ड पॉइंट लिखना है कि he has presented many rules in his book entitled Discourse on the Method. Now fourth point, among this rule, one rule was very important which has impacted, influenced the historical research. That rule is never to accept anything for true till all grounds of doubt are excluded. देखो, कभी कभी होता है हिस्ट्री ज्योग्राफी में हमारे पास 2-3 ही पॉइंट है और 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, 4 पॉइंट कैसे लिखेंगे? तो 2 क्लू मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहला क्लू है कि हमारे लेसन का जो टाइटल होता है ना, उसका एक पॉइंट बनाना है आपको। फॉर एग्जाम्पल देखो,
इस लेसन का टाइटल क्या है? हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। तो इससे मैं एक पॉइंट बना सकता हूँ कि यस, रेने डिस्कॉर्टिस वाज द स्कॉलर फ्रॉम द वेस्ट हु हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। एक पॉइंट बन गया, राइट। या फिर सेकंड क्लू आपको बताता हूँ कि ये जो हम स्टडी कर रहे हैं इसका मेन पॉइंट क्या था? नोटेबल स्कॉलर्स। तो उसको भी वापस यूज कर सकते हैं आप। चलो ये टाइटल और ये तो सेम दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको दो क्लू प्रोवाइड किए, एक है टाइटल ऑफ द लेसन, सेकंड है टाइटल ऑफ द मेन पॉइंट, ठीक है। चलो सेकंड स्कॉलर देखते हैं, उनका नाम क्या है? वोल्टेयर। ही वाज बोर्न इन 1694 एंड पास्ड अवे इन 1778. Voltaire's original name was Francois Marie Erot. He was French. He opined that, along with objective truth and chronology of historical events, considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc., was also equally important in historiography. तो देखिए वॉल्टेयर का जो ओरिजिनल नेम था वो क्या है? फ्रैंकोइस मेरी एरोट। कौन से कंट्री के? वो फ्रांस, ठीक है। लेकिन उनका यहाँ पे इंपॉर्टेंट ओपिनियन दिया है। क्या ओपिनियन है? अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स, हमें जो ऐतिहासिक सत्य है या फिर क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो घटना है एक के आगे एक, राइट, उसको छोड़ के और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है? हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? सोशल ट्रेडिशंस है, सामाजिक परंपरा है, ट्रेड है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, दे आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट इन हिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वोल्टेयर का। वोल्टेयर ने बोला है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और क्रोनोलॉजी ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स के अलावा बहुत सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हुए, सोशल ट्रेडिशन, ट्रेड, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इन हिस्टोरियोग्राफी. It gave rise to the thought that understanding all aspects of human life is important for history writing. तो वोल्टेयर ने ये बात आगे रखी ना, तो लोगों को पता चला कि अरे आज तक तो हम सिर्फ किंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, घटनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, हमने तो कभी सोशल ट्रेडिशन के बारे में सोचा ही नहीं, ट्रेड के बारे में सोचा नहीं, इकोनॉमी नहीं, एग्रीकल्चर नहीं. नाउ पीपल स्टार्टेड थिंकिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ फॉर राइटिंग हिस्ट्री. Thus it is said that Voltaire was the founder of मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. देखो तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में सिर्फ हम ये नहीं पढ़ते कि हिस्टोरिकल इवेंट्स है, क्रोनोलॉजी है, नो, हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, राइट. मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी में अलग अलग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स होते हैं. तो वॉल्टेयर ऐसा व्यक्ति, पहली बार उसने ये पॉइंट्स प्रेजेंट किए, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. ठीक है. तो थर्ड नोटेबल स्कॉलर कौन है? जॉर्ज विलहेल्म फ्रेडरिक हेजल. तो ये हेजल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर है. 1770-1831. Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका कि जो हिस्टोरिकल रियलिटी हमें कैसे प्रेजेंट करनी चाहिए? इन अ लॉजिकल मैनर. तो आगे जाके एक बॉक्स दिया हुआ है, वहां पे हम डायलेक्टिक्स नाम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसको आप लॉजिकल मैनर बोल सकते हैं. ठीक है. टू हिम द टाइमलाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स वाज इंडिकेटिव ऑफ प्रोग्रेस. तो उनके लिए जो टाइमलाइन है हिस्ट्री का, हिस्टोरिकल इवेंट का, उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेशन ऑफ प्रोग्रेस. He also thought that the presentation of history is bound to change over time as new evidence would come forward. तो हेजल ने पहली बार प्रेजेंट किया है कि जो हिस्टोरिकल ट्रूथ होता है, जिस किसी ने प्रेजेंट किया है, वो बाद में चेंज हो सकता है. Why? Because over time new evidence come forward, right? So this is a very important contribution of Hegel. With Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of lesser quality, though they differed from scientific methods. तो हेजल का इतना इन्फ्लुएंस हुआ ना कि बाकी स्कॉलर को विश्वास हो गया कि हम जो हिस्टोरिकल मेथड फॉलो करते हुए उसका कम महत्व नहीं, भले वो साइंटिफिक मेथड से थोड़ा अलग है, बट स्टिल इट हैज गॉट गुड इंपॉर्टेंस एंड इट इज डिफरेंट वन, इंपॉर्टेंट वन. The collection of his lectures and articles is published in a book entitled Encyclopedia of Philosophical Sciences. His book Reason in History is well known. तो उनकी दो किताबें हैं. पहला किताब जो है आर्टिकल और लेक्चर का कलेक्शन है, क्या नाम है उसका? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंसेज. और दूसरी जो किताब है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री वर्ल्ड में, रीजन इन हिस्ट्री. तो मैं अभी एक बॉक्स के बारे में आपको बोला था कि उन्होंने जो मेथड बताया है लॉजिकल मैनर की, तो मेथड का टाइटल क्या है? डायलेक्टिक्स. तो इस बॉक्स में दिया है. अकॉर्डिंग टू हेजल, ग्रास्पिंग द मीनिंग ऑफ एनी इवेंट हैपन्स इन टर्म्स ऑफ टू डायरेक्ट अपोजिट्स. तो हेजल का कहना क्या है? अगर आपको कोई भी चीज का मीनिंग लेना है तो मीनिंग दो तरीके से होता है, दो चीजें चाहिए उसमें. वो क्या है? टू डायरेक्ट अपोजिट्स. तो दो अपोजिट होने चाहिए. ह्यूमन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ दैट इवेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अपोजिट्स. तो उनका कहना है कि दोनों साइड हमें देखनी चाहिए. जैसे कॉइन को दो साइड होते हैं, तो किसी भी नॉलेज का, किसी भी ट्रूथ के भी दो साइड होते हैं और वो अपोजिट होते हैं. ये है और ये नहीं है, दोनों भी हमें पता होना चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल, ट्रू फॉल्स, गुड बैड. ठीक है. In order to understand the true nature of a thing, one needs to know both true and false. Similarly, good and bad.
तो हेजल का कहना है कि हमें अगर ट्रू नेचर समझना है किसी भी चीज का, तो हमें उसका ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है, और उसका गुड क्या है और बैड क्या है, दोनों में समझना बहुत जरूरी। दिस मेथड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन अपोजिट्स इज नोन एज डायलेक्टिक्स। तो ये अपोजिट पे बेस्ड जो मेथड है उसको क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक्स। इन दिस मेथड थियोरी इज प्रपोज एट द बिगिनिंग विच इज कॉल्ड थेसिस। तो इस मेथड में सबसे पहले हमें क्या प्रपोज करना है, एक थियोरी प्रपोज करनी, उसको क्या बोलते हैं, थेसिस। देन अनदर थियोरी इज प्रपोज विच इज कॉन्ट्रारी, कॉन्ट्रारी मींस अपोजिट टू द थेसिस। तो पहला जो थियोरी हमने प्रेजेंट किया है उसके अपोजिट सेकंड थियोरी प्रेजेंट करना है, उसको क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। ठीक है। आफ्टर अ थरो मतलब डिटेल लॉजिकल डिस्कशन ऑफ बोथ अ न्यू थेसिस इज प्रपोज्ड व्हिच इंक्लूड्स द जिस्ट ऑफ बोथ। तो अभी हमने क्या किया था, सबसे पहले क्या किया था, एक थ्योरी प्रेजेंट किया था, सेकंड में क्या किया, उसके अपोजिट थ्योरी प्रेजेंट कर दिया, और थर्ड में हमें क्या करना है, अभी दोनों भी थ्योरी डिस्कस करनी है और एक नई थ्योरी प्रेजेंट करनी है जिसमें दोनों थ्योरी के पॉइंट होने चाहिए पहले दोनों के, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस। दिस प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट द न्यू थेसिस इज कॉल्ड synthesis, right? So this is a very important technique. This is a logical manner he talked about in the beginning. So next important scholar कौन से, Leopold von Ranke. He was born in 1795 and passed away in 1886. Historiography of the 19th century was greatly influenced by the thoughts of Leopold von Ranke of Berlin University. तो ये जर्मनी में बर्लिन यूनिवर्सिटी वहाँ के थे और उनके जो थॉट्स है उससे बहुत सारे स्कॉलर्स 19th सेंचुरी के इन्फ्लुएंस हो गए थे। He spoke about the critical method of historical research. तो कौन से मेथड के बारे में उन्होंने बात किया है, critical method of historical research. He put emphasis on the utmost importance of information gathered through original document. उनका कहना था कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है तो किससे करना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। He also stated that all types of documents associated with a historical event need to be examined with greatest care. चलो आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए, लेकिन उनको क्या करना है, हमें केयरफुली एग्जामाइन करना है। utmost care we have to follow while examining them. He believed that with this method it was possible to reach the historical truth. अगर ऐसे स्टेप्स हम फॉलो करेंगे तो हम किसके क्लोज पहुंच सकते हैं, हिस्टोरिकल ट्रूथ। He criticized imaginative narration of history. उन्होंने कहा कि जो काल्पनिक ऐतिहासिक नरेशन है उन्होंने उनको क्या किया है, उनकी टीका की है। Collection of his articles is published in 2 books entitled The Theory and Practice of History and The Secret of World History. So ऐसे 2 किताबें लियोपोल्ड वॉन रैंके ने पब्लिश की है। They are also very important source of history. Next important notable scholar है कार्ल मार्क्स. He was born in 1818 and passed away in 1883. In the latter half of the 19th century, a new school of thought arose, keeping in view the new thesis formulated by Karl Marx. तो देखो फर्स्ट हाफ में किसने इन्फ्लुएंस किया है, लियोपोल्ड वॉन रैंके ने, और सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी किसका थॉट ने इन्फ्लुएंस किया स्कॉलर को, कार्ल मार्क्स, राइट। सो ही ब्रॉट अ स्कूल ऑफ न्यू थॉट। अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वाज नॉट अबाउट एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, इट वाज अबाउट लिविंग पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि हिस्ट्री एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, कल्पनाओं के बारे में नहीं है, हिस्ट्री इज अबाउट लिविंग पीपल, जिंदा लोगों के बारे में। Human relationships are shaped by the fundamental needs of people and the ownership as well as nature of prevalent means of production to meet those needs. तो उनका कहना है कि जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है, जो मानवीय संबंध है, वो कैसे शेप लेता है, 2 चीजों से लेता है। पहली कौन सी है, द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल, लोगों की जरूरतें क्या है, और सेकंड क्या है, ओनरशिप एंड नेचर ऑफ प्रीवैलेंट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। तो ये लोगों की जो जरूरत है वो पूरी करने के लिए जो हमें मीन्स चाहिए, जो साधन चाहिए, उसके मालिक कौन है, उसका नेचर कैसा है, उससे लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती है, राइट। तो ये 2 चीजें आपको याद रखने कार्ल मार्क्स के बारे में, दैट ह्यूमन रिलेशनशिप इज शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल एंड द ओनरशिप ऑफ दोज मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू मीट दोज नीड्स। द एक्सेसिबिलिटी ऑफ दिस मीन्स टू डिफरेंट स्टेटा ऑफ द सोसाइटी मे नॉट बी इक्वल। तो ये जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, क्या वो सबके पास होते हैं क्या, नहीं। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है कि उनको यूज करना, तो ये सबके पास नहीं होता है। देयर इज अ इनइक्वालिटी, राइट। दिस इनइक्वालिटी कॉजेस अ डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू क्लासेस। तो देखो कुछ लोगों के पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, कुछ लोगों के पास नहीं है। इससे क्या हो जाता है, समाज में अलग अलग क्लासेस तैयार हो जाती है, राइट। सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू क्लासेस लीडिंग टू क्लास स्ट्रगल, और ऐसे क्लासेस में क्या होता है, संघर्ष होता है, राइट। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल as the class that owns the means of production economically exploits the rest of the classes. तो यहाँ पे आते हैं कार्ल मार्क्स कि अगर
हिस्ट्री, ये जो इनइक्वालिटी है ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, इसकी वजह से क्या होता है, क्लास स्ट्रगल होता है, और इसी क्लास स्ट्रगल का हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। सो ह्यूमन हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल, और इसमें दो क्लास होते हैं, द क्लास दैट ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जो मालिक लोग हैं, दे इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट, शोषण करते किसका, द रेस्ट ऑफ द क्लास है जिनके पास से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते। दास कैपिटल, अ ट्रीटिज रिटन बाय हिम, इज द मोस्ट रेफर्ड बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इन्होंने एक किताब लिखी है, एक्चुअली उसको ट्रीटी, वो पहले ट्रीटी था लेकिन बाद में उसको किताब बनाया गया, दैट हैज़ बिकम वेरी फेमस। तो दास कैपिटल आप इंटरनेट पे सर्च करके देखो, उनका दोस्त है एक एंजल नाम का, दोनों ने मिलके बनाया और इतना फेमस हो गया था ये थॉट कि मजदूर, किसान, इन्होंने ये फिलोसॉफी बहुत ही फॉलो किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है एनल्स स्कूल, राइट। तो ये एनल्स स्कूल क्या है, एट द ऑनसेट ऑफ द 20th century अ न्यू स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी एरोज इन फ्रांस। तो ऑनसेट का मतलब होता है बिगिनिंग, जैसे 20th century का शुरुआत हुआ तो एक नया स्कूल ऑफ थॉट आया हिस्टोरियोग्राफी में फ्रांस में, विच इज नोन एज एनालिस स्कूल। एनालिस स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू हिस्ट्री राइटिंग, तो एक नई दिशा दिखा हिस्ट्री राइटिंग के लिए। इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स एंड अकॉर्डिंगली पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स, but also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions and their collective psychology etc. in the historical times। तो यहाँ पे मुझे याद आती है वॉल्टेयर की, कि वॉल्टेयर जो फाउंडर है हिस्टोरियोग्राफी के, उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री और क्रोनोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए। तो एनालिस्ट स्कूल ने भी यही बताया कि वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज हिस्ट्री एज ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स, किंग्स, ग्रेट लीडर्स एज वेल एज पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी एंड वॉर्स। तो इसके अलावा हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, क्लाइमेट, लोकल पीपल, एग्रीकल्चर, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, सोशल डिविजन्स एंड देयर कलेक्टिव साइकोलॉजी इन द हिस्टोरिकल टाइम्स। तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो संवाद करने के जो मीन्स है, जैसे मोबाइल है, लेटर्स है, फैक्स है, राइट। सोशल डिवीजन, तो समाज में कौन से डिवीजन है, अलग अलग कास्ट है, रिलीजन है, उनके बारे में, राइट। एंड कलेक्टिव साइकोलॉजी, तो ये सब लोग एक साथ कैसे सोचते थे, कौन सी परंपराएं थे, उसके बारे में स्टडी करना है, राइट। द एनालिस स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियंस। तो किसने स्टार्ट किया था, ये जो फ्रेंच स्कॉलर्स है, फ्रेंच हिस्टोरियंस, उन्होंने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वीमेन। तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे मीनिंग दिया है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का। क्या मतलब होता है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का, कि रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हिस्ट्री, जो पुराने जमाने में पूरा जो इतिहास लिखा गया है उसको अभी बदलना है, किसके एटीट्यूड से, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वीमेन। तो महिला कैसे देखती है उसको, उस हिसाब से उसको रिस्ट्रक्चर करना, इसको बोलते हैं फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। द राइटिंग्स ऑफ सिमोन दी ब्यूवर हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। तो ये फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहाँ से आया, तो एक लेडी है, उसका नाम है सिमोन दी ब्यूवर। उसने जो राइटिंग की है उससे एस्टैब्लिश हुए द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। शी वॉज फ्रेंच। The feminist historiography emphasized not only on the inclusion of women in history, but also on the rethinking of the male-dominated perspective of history. तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में दो चीजों को बहुत ही महत्व दिया गया है। सबसे पहला है इंक्लूजन ऑफ विमेन इन हिस्ट्री, इतिहास में महिलाओं का समावेश करना, क्योंकि ये जो मेल लोग थे जो लिखते थे हिस्ट्री, उसमें महिलाओं को बिल्कुल महत्व नहीं देते थे। तो सबसे पहली बात है इंक्लूजन ऑफ विमेन इन हिस्ट्री। और यही नहीं, सेकेंड बात क्या है, रीथिंकिंग ऑफ द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री। तो मेल के एटीट्यूड से लिखा गया था, अभी फीमेल के एटीट्यूड से सोचो और उसको रीस्ट्रक्चर करो, राइट। It drove historical research to focus in depth on various aspects of women's life, such as their employment, their role in trade union, institutions working for their cause, their family life, etc. तो कौन से टॉपिक्स का रिसर्च शुरू हुआ फिर फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में। सबसे पहले क्या है, देयर एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं का जो काम है, देयर रोल इन द ट्रेड यूनियन, उनको कौन सी भूमिकाएं मिली है ट्रेड यूनियन में, इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर देयर कॉज, उनके लिए कौन सी संगठना है जो काम कर रही है, देयर फैमिली लाइफ, उनका जो कौटुंबिक जीवन है वो कैसा था। इन द हिस्टोरिकल राइटिंग्स आफ्टर 1990 विमेन वेयर पोर्ट्रेड एज एन इंडिपेंडेंट सोशल क्लास। तो 1990 के बाद जो भी हिस्टोरिकल राइटिंग्स हुए उसमें महिलाओं को कैसे दिखाया गया है, एज अ सेपरेट सोशल क्लास। नहीं तो इसके पहले उनको एज्यूम किया गया था, राइट। नाउ लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफर है वो है मिशेल फुको। इनका जन्म होता 1926 एंड पास्ड अवे इन 1984। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ द 20th century मिशेल फुको ब्रॉट फॉर द न्यू कॉन्सेप्ट इन हिस्टोरियोग्राफी। तो एक नई कॉन्सेप्ट लाई हिस्टोरियोग्राफी इन्होंने। ही इन हिज बुक आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज argued that
the prevailing practice of arranging historical events in a chronological order is not right. तो ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. उन्होंने कहा है कि जो हिस्ट्री हम अरेंज करते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि ये पहली घटना है, दूसरी घटना है, तीसरी घटना है, अरेंजिंग दिस हिस्टोरिकल इवेंट्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट. ये बराबर नहीं. ही ड्रीव अटेंशन टू द फैक्ट दैट आर्कियोलॉजी डज नॉट स्ट्राइव टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ बट अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशंस इन द पास्ट. तो उनका कहना है ये आर्कियोलॉजी मतलब उनका मेथड है, ये मेथड उन्होंने यूज किया है हिस्टोरिकल रिसर्च में. तो उनका क्या कहना है कि मैंने जो मेथड यूज किया है उस मेथड में मैं क्या अचीव नहीं करता हूं, मुझे अल्टीमेट जो अंतिम हिस्टोरिकल ट्रूथ है उससे कोई लेना देना नहीं. मेरी जो मेथड है वो क्या स्टडी करती है, टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट. तो भूतकाल में जो जो ट्रांजिशन हुए, जो जो बदलाव हुए समाज में, वो मैं टारगेट करता हूं, मुझे हिस्टोरिकल ट्रूथ से कोई लेना देना नहीं. राइट. तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है. ही टोल्ड अस that archaeology does not strive का मतलब होता है प्रयत्न करना. तो आर्कियोलॉजी इसके लिए प्रयत्न नहीं करता है, किसके लिए, टू रीच द अल्टीमेट हिस्टोरिकल ट्रूथ. जो अंतिम ऐतिहासिक सत्य है वो हमें नहीं चाहिए, बट क्या चाहिए, अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन वेरियस ट्रांजिशन इन द पास्ट. तो पास्ट में जो जो चेंजेस हुए, बदलाव आए, ट्रांजिशन हुए, जो स्थित्यंतर हुए, उसको हम कैचअप करने की कोशिश करते हैं. Foucault felt that explaining the transition in history is more important. तो इतिहास में जो पास्ट में जो बदलाव आए हैं उसको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. राइट. ही कॉल्ड हिज मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. तो इस मेथड को उसने क्या नाम दिया है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और उसकी किताब का नाम भी यही है. Foucault subjected the so far unacknowledged areas by historians such as psychological disorders, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. तो फुको ने ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को टच किया है जो आज तक हिस्टोरियन का ध्यान ही नहीं गया है, उन्होंने उसको अनएक्नॉलेज किया. तो कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है, नंबर 1 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. तो लोग पागल क्यों होते हैं, पहला पागल कौन है दुनिया का. राइट. तो व्हाई दे आर कॉल्ड फुलिश पीपल, मैड पीपल, इनसेन पीपल, तो उसका भी हिस्ट्री उसने स्टडी किया है. साइंस ऑफ मेडिसिन, तो ये जो दवाई है शुरुआत कहाँ से हुई है. राइट. प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, तो जेल की जरूरत क्या है. पुराने जमाने में तो राजा लोगों की कोठड़ियाँ थी, लेकिन जेल अभी जो चलते हैं, जेलर है, कैदी है, ऐसा नहीं था. तो इसकी क्या जरूरत है हमें. राइट. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ही टच्ड. राइट. दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. Thus, the scope of historiography kept continuously expanding, writing up histories of various subjects like literature, architecture, sculpture, drawing and painting, music, dance, drama, films and television, etc. came into practice. तो देखो हमने बहुत सारे टॉपिक कवर किए, आगे जाके ऐसा दिया है कि हिस्टोरियोग्राफी में और भी टॉपिक्स कवर किए गए. कौन से, जैसे लिटरेचर है, मतलब राइटिंग्स किए हुए. राइट. आर्किटेक्चर है, हिस्ट्री ऑफ स्कल्पचर, हिस्ट्री ऑफ ड्राइंग, हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, फिल्म्स एंड टेलीविजन. They also came into practice. So here we will finish the lesson, we will end the lesson. But if you like this lesson, don't forget to subscribe my channel. I will bring more interesting topics in the next video. Thank you very much for watching. Stay tuned.